Okay, welcome my dear students to the topic of basic organic chemistry. We will see today functional group and compounds with single functional group and multiple functional group and their IUPAC nomenclature. So in order to get IUPAC nomenclature of organic compound, we must know what is functional group, correct? And after knowing functional group, we can name various organic compound using IUPAC rules. So dear students, functional group is what? It can be an atom. Functional group can be an atom or group which is responsible for the characteristic property. This is something very important word, characteristic properties. Characteristic properties of an organic compound. Characteristic property of an organic compound. So ऐसे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप. There are certain atom or group of atoms which are deciding factor, which are responsible for characteristic properties of that particular organic compound is what we call as a functional group. अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको पता है, ये एकदम इजी एग्जाम्पल हम हर बार लेते हैं. ये है, क्या है ये? एसिटिक एसिड. नाउ दिस कंपाउंड इज एन एसिड बिकॉज इट possess this group COOH as carboxylic acid functional group. And this carboxylic acid functional group, this group makes the entire compound an acid which is named as acetic acid. So this group is responsible for its acidic property. तो जितनी भी acidic property होगी ये किसके वजह से है? ये वाले ग्रुप के वजह से है जो हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. तो ये है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर, करेक्ट? दिस फंक्शनल ग्रुप COOH decides the characteristic property. That's why we call it as functional group. जैसे एक और एग्जाम्पल, ये भी आप लोगों को पता है, C2H5OH. We name it as ethyl alcohol. और कुछ बच्चों को ये भी नाम पता होगा, इथेनॉल, करेक्ट है? सो इथेनॉल और ethyl alcohol. Now this compound will show alcoholic characteristic property. Alcoholic characteristic properties. Characteristic properties because of presence of this particular group. We call it as hydroxy group, or in general we call it as alcoholic functional group. So जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में COOH, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसके कारण थी? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कारण. सेकेंड एग्जाम्पल में अब क्या देख रहे हैं? ये एल्कोहलिक कंपाउंड क्यों बना? क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है. तो ये सारे एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा? OH ग्रुप. So this will be responsible for alcoholic functional group.
and that's why we call functional group as an atom or group of atom which is responsible for the characteristic properties of an organic compound. एक और एग्जाम्पल बनाते हैं जो आपको पता होगा, C2H5Cl. Now this is named as ethyl chloride. Ethyl chloride, or it is also named as chloroethane. ये भी कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा. तो बेटा ये C2H5Cl, इसमें Cl क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है. And this will explain this will be responsible for all the properties of chloro compounds. तो इथाइल क्लोराइड ये हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, और हेलोजन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है. एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. C2H5, ये सब क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप होते हैं. They are not responsible. They are the simple hydrocarbon, है ना? ये कार्बन और हाइड्रोजन है, तो they are hydrocarbons. They are not responsible for characteristic property. It is atom or group of atom which are responsible for characteristic property of organic compound. So ये हो गया हमारे functional group की definition. कि functional group can be an atom, single atom. It could be a group of atoms which is responsible for characteristic properties of an organic compound. तो ये example से आप याद रखेंगे functional group क्या है. We have a list of functional group, है ना. अब ये functional group किसी organic compound में attach रहते हैं. So they are attached to a particular compound. जैसे यहाँ पर मैं फिर से एग्जाम्पल बनाता हूँ, C2H5Br. अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? हेलोजन Br. अब हमें IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है. IUPAC का फुल फॉर्म तो सभी को पता है, लेकिन ये सिस्टम ने हमें क्या दिया है? कुछ रूल्स दिए हैं. इंटरनेशनल Union of Pure and Applied Chemistry. So those rules are applied for naming organic compound. So if we want to name this compound according to IUPAC nomenclature system, what we will see that this is halogen, we call it as bromo. C2H5 is ethane, we name C2H5 is ethane. It is named as bromoethane. तो IUPAC nomenclature मेरे previous lecture में आपने देखा होगा कि hydrocarbons, how to name hydrocarbons according to IUPAC system. Branch chain hydrocarbons, how they are named in IUPAC system. Then unsaturated compound, how they are named according to IUPAC system. That fundamental part was there in the previous lecture that you can see very well. Now what we are interested in naming those organic compound which have some particular functional group, and these functional group can be named as prefix as well as suffix. प्रीफिक्स यानी जो नाम के पहले लगेगा. जैसे यहाँ पर C2H5 is the basic part of it, we call it as ethane. ब्रोमो ये प्रीफिक्स इथेन के पहले लगा है, तो इसे हम कहेंगे ब्रोमो इथेन. So some functional group can be used as prefix, some can be used as suffix. Some functional group only used as prefix. वो कहीं भी रहे, position कुछ भी हो, they are called as only prefixes. जैसे हेलोजन भी है यहाँ पर, ये देखेंगे आप
X लिखा हुआ है, हेलोजन को X से डिनोट करते हैं. We call them as halo in IUPAC system. It could be chloro, bromo, iodo, fluoro, like that. दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो सिर्फ प्रीफिक्स होगा वो है नाइट्रो NO2. एक और फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा प्रीफिक्स बनेगा. वी कॉल देम एज एल्कोक्सी ग्रुप. OR. एल्कोक्सी क्या है? ये अल्काइल और ऑक्सीजन को मिलाया. R क्या है? अल्काइल है. और O क्या है? ऑक्सीजन. दोनों को मिला दिया तो OR बना. वी कॉल इट एज एल्कोक्सी. देखो एग्जाम्पल, R हमने CH3 लगाया और उसके साथ ऑक्सीजन, तो ये क्या बना? मिथॉक्सी. मिथाइल और ऑक्सीजन. नेक्स्ट वाला इथॉक्सी, C2H5 and O. We call it as ethoxy functional group. So few example which can be always mentioned as prefix. Okay? तो एक और एग्जाम्पल जैसे यहाँ ओनली प्रीफिक्स वाला मैं देख लूं तो ये देखो C2H5NO2. अब NO2 ग्रुप आ गया, ऑलवेज प्रीफिक्स. C2H5 is ethyl. We call it as nitroethane. Nitroethane. C3H7NO2. We call it as nitro. देखो नाइट्रो आ गया प्रीफिक्स. We call 3 कार्बन है तो नाइट्रोप्रोपेन. IUPAC system. So this is what only prefixes. And now here we have certain functional group which are used as prefixes as well as suffixes. अब prefix और suffix ये कब होगा? जब एक से ज्यादा functional group रहेंगे. When we have organic compound with more than one functional group, at that time one of the functional group will be considered as a principal functional group while other functional groups are considered as prefix or substituent. वो पढ़ाएंगे अभी हम आपको, है ना. और मैंने क्या कहा कि जब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स आएंगे, पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीफंक्शनल ग्रुप अगर उनमें है ना, पॉलीफंक्शनल organic compound, if we have polyfunctional organic compound, तब हम देखेंगे कि इसमें nomenclature हमें ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज करना होगा. जैसे समझने के लिए अभी nomenclature नहीं करेंगे लेकिन पॉलीफंक्शनल समझा दूं आपको मैं. CH3, CH, Cl, CH2, CH, Cl, COOH. अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये क्लोरो, ये भी क्लोरो, तो दोनों आइडेंटिकल है. यानी वन फंक्शनल ग्रुप इज क्लोरो, अनदर फंक्शनल ग्रुप इज COOH. वी टर्म देम एज अ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड. अब इसमें कुछ प्रीफिक्स बनेगा, कुछ सफिक्स बनेगा. एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं. CH3, CH, OH, CH, Cl, CH2, CHO. Here also see how many functional group we are having. One OH functional group, another Cl यानी ये alcoholic, ये halogen जैसे Cl लिया था. अब Cl को थोड़ा बदल देते, Br करते हैं, तो next halogen Br फंक्शनल ग्रुप. और ये थर्ड फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO. अब यहाँ पर हमें प्रीफिक्स और सफिक्स ये दोनों की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ हमें मिलता है ये CHO अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, Br ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप, OH हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप. तो इसमें से एक फंक्शनल ग्रुप हमारा बनेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी के फंक्शनल ग्रुप जो रहेंगे वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे एंड दे विल बी कंसिडर्ड एज
प्रीफिक्सेस। तो सफिक्स कौन सा रहेगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और दूसरे क्या रहेंगे आपके? दूसरे क्या रहेंगे आपके? जो है ये प्रीफिक्सेस बनेंगे। और कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल, प्रिंसिपल तो डिसाइड कर लिया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका यहां पर प्रीफिक्स बनेगा, उसका ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके एक कंपाउंड में COOH है तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा। उसमें अगर CN है और COOH है तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? COOH को। करेक्ट है। तो ये आपका प्रिंसिपल, और साइनाइड जो रहेगा वो उसका सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट हो गया यानी क्या मीनिंग हो गया उसका? साइनाइड ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो ये बनेगा प्रीफिक्स, और COOH जो रहेगा वो सफिक्स बनेगा। जैसे यहाँ पर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए, पॉलीफंक्शनल में अल्डिहाइड भी है, ब्रोमो भी है और हाइड्रोक्सी भी है। अब ये प्रायोरिटी लिस्ट में से आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लो। एक प्रिंसिपल रहेगा, एक ही, है ना, स्कूल कॉलेज में एक ही प्रिंसिपल होता है ना। प्रेसिडेंट हमारा इंडिया एक ही रहेगा, प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा। तो वैसा ही ये इतने सारे फंक्शनल ग्रुप में एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी उसके साथ में जो भी रहेंगे वो सब सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे? दे विल बिकम प्रीफिक्सेस। तो अब यहाँ पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ये है CHO। CHO इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया। और बाकी के जो ग्रुप है ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेटा हो गया, तो इसके साथ इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे हम? दिस विल बी सफिक्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप विल ऑलवेज बी प्रीफिक्स। तो सॉरी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज सफिक्स। तो अल्डिहाइड के लिए AL यूज करना होता है, समझाएंगे अभी आपको। और दूसरा क्या है? अब ये Br है, ये प्रीफिक्स बना, ये तो वैसे भी प्रीफिक्स ही रहता है। लेकिन OH तो वैसे आ रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, बट दिस विल नाउ इन कंपैरिजन टू दिस इट विल बी प्रीफिक्स, दिस विल बी प्रीफिक्स। यहां पर ये बन गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। एंड this will be what? This will be the prefixes. Here principal functional group, these two are prefixes. तो बात चल रही थी हमें IUPAC nomenclature अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का करना है तो उसके पहले प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी। प्रायोरिटी ऑर्डर से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे एंड रेस्ट will be substituent and they are considered as prefixes। और उसके लिए ये ऑर्डर आपको याद करना होगा। जरा एक बार मैं ऑर्डर के नाम बोल दूं, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले तो दिख रहे हैं, क्या सभी के नाम आते हैं आपको? तो COOH इज कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H इज सल्फोनिक एसिड, COOR इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लिखा हूं मैंने एस्टर फंक्शनल ग्रुप, COCl इज एसिड क्लोराइड, तो COCl इज एसिड क्लोराइड, CONH2 इज अमाइड, CN इज साइनाइड और नाइट्राइल, CHO अभी हमने बात की है अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O इज कीटोन, OH इज एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2 इज अमाइन और C डबल बॉन्ड C ये तो आपको आता है अल्कीन, C ट्रिपल बॉन्ड C इज अल्काइन।
सो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, नाम बोल दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन सल्फोनिक एसिड, sulfonic acid is greater than ester, ester is greater than carbonyl chloride, carbonyl chloride is greater than amide, amide is greater than cyanide, cyanide is greater than aldehyde, aldehyde is greater than ketone, ketone is greater than alcoholic hydroxy functional group which is greater than NH2 amine functional group which is greater than alkene and alkene is greater than alkyne. यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ाया है वैसे मैंने, है ना। तो जब डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड रहेंगे तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड को फिर उसके बाद प्रीफिक्सेस में कंसिडर करते हैं। तो बेटा ये हम पढ़ रहे हैं IUPAC nomenclature of organic compound containing polyfunctional group more than one functional group। अब सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का तो नोमेनक्लेचर आपको आता है, जैसे सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड CH3 CH2 CH2OH, है ना। अब इसमें क्या है, 1 2 3 3 कार्बन इज प्रोपेन, करेक्ट है। अब प्रोपेन में OH इज एल्कोहलिक ग्रुप, ओनली वन एल्कोहलिक ग्रुप कहाँ है बेटा, ये नंबर 8 पे। इसका सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो ये OL आना चाहिए उसके सफिक्स में। OL आने के लिए क्या करेंगे, इसमें से E को रिप्लेस करेंगे OL से, E को, ये जो एंडिंग E है इसे रिप्लेस करेंगे OL से, तो ये क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, करेक्ट है, ये बना प्रोपेनॉल। तो अब 1 2 3 प्रोपेनॉल, अब ये कार्बन 1 2 3, तो 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। आपने नंबर नहीं भी दिया तो चलेगा, बिकॉज OH ग्रुप इज ऑन द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको नंबर नहीं देते हैं। इफ इट इज समवेयर एल्स देन वी हैव टू नंबर। जैसे इसी को फिर से लिखते हैं, CH3 CH2 CH CH3, और अब यहाँ पर OH ग्रुप आ गया। तो हमारा बेसिक रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सो दैट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ये चेन है, इसमें ये इसका लेफ्ट हैंड टर्मिनल, ये इसका राइट हैंड टर्मिनल, सही है। अब आप नंबरिंग करेंगे तो ये राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो 1 2 3 4, करेक्ट है, या 1 2 3 4, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। ये राइट हैंड टर्मिनल, ये लेफ्ट हैंड टर्मिनल, या ठीक है, नंबरिंग किया आपने 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन इज ब्यूटेन। आपको करना क्या होगा, ब्यूटेन का E सफिक्स निकालेंगे, उसके जगह क्या लगाएंगे, OL, तो ये क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल बन गया, ब्यूटेनॉल। बट दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज ऑन द सेकेंड कार्बन, तो OL हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए है, तो ब्यूटेन का हम क्या करेंगे, सेकेंड पोजीशन पे OL है, तो ब्यूटेन टू ऑल, है ना, ब्यूटेन टू ऑल इज द नोमेनक्लेचर। यहाँ प्रोपेन 1 ऑल नहीं बोलते हैं, है ना, प्रोपेन 1 ऑल ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे है तो उसका नंबर नहीं भी लिखा तो चलता है, इसीलिए ये कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपेनॉल। बट दिस कैनॉट बी नेम्ड एज ब्यूटेनॉल, इसको हम ब्यूटेनॉल, सिर्फ ब्यूटेनॉल नहीं लिख सकते क्योंकि ब्यूटेनॉल यानी OH कहाँ पर होना चाहिए, फिर फर्स्ट कार्बन पे, तो OH ग्रुप की पोजीशन सेकेंड कार्बन पे है, तो वी नेम इट एज ब्यूटेन टू ऑल।
करेक्ट है, ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH। देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल लिया मैंने। अब इसमें नोमेनक्लेचर करना है आपको। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इन इट। तो हमारा बेसिक रूल तो वही है, ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड। तो ये फर्स्ट कार्बन बनेगा, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, करेक्ट है। तो CH3 CH2 CHOH, और ये ग्रुप जो CH3 है ये क्या बनेगा, इसका ब्रांच चेन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन। सही है, ब्रांच चेन और साइड चेन। तो अब इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 4। 4 इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई ड्रॉप करेंगे, उसके जगह क्या लगाएंगे, अल्डिहाइड है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो Al, अल्कोहल के लिए OL, अल्डिहाइड के लिए Al। सही है, तो क्या बना अब बेटा यहाँ पर, ये ब्यूटेनल, करेक्ट है, ब्यूटेनल। अब ये फर्स्ट कार्बन है तो नंबर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका क्या करेंगे, व्हाट हैपन टू दिस CH3, ये ब्रांच है, दिस इज अ साइड चेन। तो ये ब्रांच कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे। आपको पेरेंट कंपाउंड का नाम तो आ गया, लेकिन प्रीफिक्स अब लगाना होगा। तो प्रीफिक्स क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, दिस वुड बी 2-मिथाइल ब्यूटेनल, 2-मिथाइल ब्यूटेनल, करेक्ट है। देखेंगे फिर से एक बार, 1 2 3 4 कार्बन, दिस इज CH3। ये पेरेंट चेन में है क्या, हमने क्या सिखाया था आपको कि पेरेंट चेन को बॉक्स में ले लो, जो भी ब्रांच रहेगा, साइड चेन रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा, उसको एनसर्कल कर दीजिए। तो आपने एनसर्कल कर दिया ब्रांच को। नंबरिंग, अल्डिहाइड विल ऑलवेज गेट फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 कार्बन इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई ड्रॉप किया, Al लगा दिया, ब्यूटेनल बन गया, ब्यूटेनल। लेकिन इसका पूरा नाम हुआ क्या, नहीं, इसमें अभी ये ब्रांच और साइड चेन का नाम देना रह गया था। उसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड कार्बन पे। तो हमने नोमेनक्लेचर क्या किया, 2-मिथाइल ब्यूटेनल। तो ये हो गया सिंगल कंपाउंड, सॉरी, सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, और उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना। सही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, करेक्ट है। कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, इफ इट इज देयर, then how to name polyfunctional compound. A very important lecture going to come very soon. Okay, so see you in the next lecture. Thank you very much.